अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं दो नौमुंतखब नुमाइंदों के साथ। आप दोनों फॉर्म 47 ज़दा हैं। इनके साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इनके डिसिडेंट्स भी मौजूद हैं घुमन साहब की सरबराही में। मंदे नारे बजेंगे, मंदे नारे बजेंगे, मंदे नारे बजेंगे, मंदे नारे बजेंगे, मंदे नारे बजेंगे। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਘੁੰਮਣ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ 1947 ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। सच्चे किन की बात कर रहे हैं? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ तो अपनी सीट हार गए थे। ਉਹ ਸਰ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ। ये क्या बात हुई कि सीटा मिलनियां सन? इसका क्या मतलब? ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ नहीं ਪਿਆ। बहुत कम था भाई, इस तरह तो नहीं था ना, आंखों में धूल तो नहीं झोंकी गई ना। सर वैसे आपने इनका कंपैरिजन टू ग्रेटनेस देखा था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बना था और फॉर्म 47 से जो आया है, हाय हाय। और जो हशर हमने 47 में मिले हुए पाकिस्तान का किया है, वही हशर हम इस दफा इलेक्शन का करेंगे, डेमोक्रेसी का करेंगे। ਤੁਸੀਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ ਭਲਿਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰਾ ਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ आया। अच्छा, आया तो ये डमी म्यूजियम से है, लेकिन नवाज लीग का रंगीला है ये भी। ਹਾਂਜੀ बोर करने में यद तूला रखता है भी। इतनी लंबी बात। ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਬਿੱਲ ਆਂਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। अच्छा गुमन साहब, कोई एक प्रॉब्लम बताए ना जो लेकर आज आप आए हैं। हमेशा आप कभी गंदम का मसला छेड़ते हैं, कभी महंगाई का, कभी बिजली का, कभी लॉ एंड ऑर्डर का। आज क्या लेकर आए हैं? ਉਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਐ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। की लेके आएंगे? ਇਹ ਖੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਇਹ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਸ਼ੀਆ। ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैं कुमन साहब आपकी हर बात से एग्री नहीं करता, लेकिन ये जो बिजली के बिल है ना, इन्हें देखकर तो बंदा बाकायदा हर्ट फील करता है। एक तो फाइनेंशियली तो हर्ट होता ही है ना, दूसरा वो लगता है जैसे किसी ने उसको जलील कर दिया पकड़ के। एंड आई वंडर कि हमारे लोग एक साल से कोप कैसे कर रहे हैं इन बिल्स के साथ। देखे ना, वो उन्होंने आदत डाल दी है कि भाई जाओ। इन्होंने बेचारों ने कौन सा बोलना है आगे से। मैंने एक दफा कोट की थी कि फिरौन से किसी ने पूछा कि ये तुम्हें किसने इख्तियार दिया है इस्तबदादियत का, ये डिक्टेटर बन के जो हुक्म सादर करते हो? उसने कहा हमें असल में किसी ने रोका ही नहीं कभी, क्योंकि किसी ने नहीं रोका, हम बढ़ते चले गए। बोलते नहीं हो मालशिए? ਆਹੋ ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਸਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਝੱਸਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਚ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे बिजली के बिलों की। ਉਹ ਲਾਣਤ ਪਾਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। हाँ जी, कितना करनी है, हम भी यही जानने के लिए बैठे हैं। ਅਰਕਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। चाइना तो ਹਾਂਜੀ तो क्या लाएंगे वो? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਅਰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 200 ਅਰਬ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਆ, ਕਸੀਨੋ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਓਏ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? नहीं तो इतनी सी बात पे सर फाड़ दिया आपका? ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਉ ਸਨ। ओए ओए, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਰਪਟ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, हाँ जी, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜ ਦੌੜੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੀ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਏ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ? ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा घुमन साहब, आप पंजाब से हैं, क्या वजह है? ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਮਾਲਸ਼ੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੂਤ ਫੇਰੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। और केपी में जो अशर किया वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम पता नहीं कैसे इलेक्ट हो गए हो। ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅਸੀਂ। मेहनता क्या मेहनता हुई है? ਸਰ ਮਾਲ ਖਰਚਿਆ किसने? ਐਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। पैसे खर्च करके हुए हो। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ, बाकी इस तरह के इलेक्शन पे पैसे ही लगते। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। वाह, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। भाई वाह, ये साईं देखो कैसा सिंक हुआ है शकील साहब। ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 3.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 45 ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ 뮤직 ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਅਮਰ ਕਰਤਾ। ओहो, ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। आपको टकरे नहीं है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੱਕਰਿਆ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ। नहीं, इबादत गुजार क्या मतलब? ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਲ ਹਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। अच्छा, तुम समझते हो कि इमरान खान इस नाच गाने की वजह से जीता? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਅਤਾउल्ला ने पता कितना सरीला गाना किया, जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। ਐਡਾ ਸਰੀਲਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਤੜਕਿਆ ਗਿਆ ਏ ਸਰਕਾਰ। ਹੋ ਆ ਟੁੱਕਰ ਆਲੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਉਂਝ ਸੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਟੂਵੈਲ ਦਾ ਠੋਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਦਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਓਏ ਪਾਗਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ओ ਨਹੀਂ। भाई, ये बड़ी अहम चीजें हैं। असल मसला तो भूख है, इफलास है, बीमारी है, जॉब्स हैं। ये देखो बीजेपी के साथ अयोध्या में क्या हुआ? ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या क्या कुछ नहीं बनाया था। एयरपोर्ट्स बनाए, सड़कें बनाई, पार्क बनाए, और तो और राम मंदिर बना डाला बाबरी मस्जिद का। लेकिन हुआ क्या? बुरी तरह हारी है बीजेपी। वहाँ एक ऐसे शख्स को डिफीट हुई है जो 3 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ था। जी, फैजाबाद से। जी। ओए होए। और तो और अवैसी साहब ने, वो क्या लट्ठा, क्या नाम है उस खातून का, जो 3 लाख की लीड से हारी है। वाह। लेकिन बात हो रही है तामीर और तरक्की की। तामीर और तरक्की वो होती है जिससे अवाम को कुछ मिले। जी। महज ये कह देना कि जी हमने ये टावर्स बना दिए हैं, ये पहाड़ खड़े कर दिए हैं, इससे कुछ नहीं होता। और अगर देखा जाए ना तो इस वक्त सबसे ज़्यादा वरीड पर्सन साउथ एशिया में को हो सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जिस तरह की उनकी उठान थी, जिस तरह के रिजल्ट्स वो चाहते थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे, उशरे शीर भी नहीं है उसका। पहले बात हो रही थी कि बीजेपी इस दफा 400 से ज्यादा सीटें लेगी। जी जी जी। वो 300 भी नहीं ले सके। यस। तो अब जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। कोलिशन बनाएंगे, और कोलिशन आपको पता है इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट होती है, जबकि उधर इंतहाई तगड़ी ऑपोजिशन। वो उस तरह अब खुल नहीं खेल सकेंगे जिस तरह वो खेलते आए हैं थ्रू आउट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ तो और क्या है, ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। जे तुसी मुसर होते ओके फिर चल ही रही होनी है। चल दियां इस तरह नहीं ने हुकूमत। ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਲ ਫੜਨ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ और ਹਕੂਮਤ। ट्रेजिडी है तुम्हारी हुकूमत को तो वेल भी नहीं मिल रही। ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਓਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਕੁ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। जरूर जरूर जरूर। हरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाते मोहब्बतें
हो गई जिनको वो दीवाने कहा जाए भरी टातर पा पा जिम पा दिन पा जिम पा ढग तक तक निटिक ढग धा लगे हैं शम्मा पर पहरे ज़माने की निगाहों के ज़माने की निगाहों के जिन्हें जलने की हसरत हो डम 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 जिन्हें जल जिन जिन पा जिम पा दिन पा दादर दादर डंडा टिन ताता के दन्ने के दन्ने डंडा के दन्ने के दन्ने ताता के दन्ने के दादर के दादर के ਭਾਈ ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਗਾ ਹੁਣ ਕਰੀਬ डांस एकेडमी ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 4 ਕੁ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्यों भाई, उन्हें इतराज ना हो? ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। चले जी, उन्हें कोई इतराज नहीं तो ओके गो अहेड। ਆਪ ਇਧਰ ਆ ਸਾਬਰੀ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲਾਈਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਰਤਪਾਕ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। और तपाक जरा गहरी जुगत है प्लीज ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाय हाय ड्रोन कैमरा ਅਗਾ ਚਾਹ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਹ। वैसे आप पूरे नहीं उतर सकते इनके साथ, इनके पास अफरादी कुव्वत भी ज्यादा, जी, इनके पास नजरियाती कुव्वत भी ज्यादा। और इनके पास मरासी कुव्वत भी ज्यादा है। नहीं, लेकिन आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से। मेरा तल्लक जरूर है, लेकिन मेरी सुनिया ही नहीं इन्होंने। बजरी च मलंग बने ये आपने 4 दिन पहले भी लगाई थी। मैं बजरी तो क्या सी मैं? हाँ जी। मैं रूढ़ी कर देना, साडा तो घर दा काम आ। इसका क्या मतलब है? आ तुर्की वालियां गड्डियां ने साडियां दो। ये जो गंद कट्टे आहो ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾ ਲਓ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਲਓ 4 ਗੱਡੀਆਂ। आप वैसे उस गाड़ी के ड्राइवर लगते हैं, यकीन करें। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ वाह वाह वाह, ये जो बैठा हुआ है इसकी बात है ना? ਜੀ जी। वाह वाह वाह, ये खूबसूरत है भाई। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਬਈ? जिन, जीन से जिन, जीम से जुराब, एलिट्रेशन। ਦੋ ਜੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਚੰਡ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਪੂਰੇ 7:15। ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 7 और 7। ओए अल्ट्रेशन क्या होती? ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀ वो एलिट्रेशन थी। ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਗੀ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। हाँ यार, वो जो आपने पोइट्री दिखाई थी वो क्या है? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। वाह, ਤੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ। वाह वाह वाह, फरीद साबरी वाह। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਗੰਜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੰਜੀ ਦਾ ਪਤਾ? ਗੰਜੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜੀ। शकरकंदी होती है, शकरगंजी कह देते हैं लोग। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗੰਜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਜੀ ਪਾਈ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਆਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਆਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਆਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੰਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਮੰਜੀ। ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਮੰਜੀ। ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਿਓ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੰਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੁੰਨੇ ਇਹ ਖਾਧਾ ਕਦੀ ਕੁੰਨਾ? ਪੁਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਓਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੰਨੇ। ਹਾਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੰਨੇ। ਓਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੰਨੇ। ਓਏ ਓਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੰਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਕ ਗਏ ਖੁੰਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਕ ਗਏ ਖੁੰਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਰ। ਬਾਰੀ ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਰ। ਹੋਰ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਰ। ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਰ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਰ। ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬੂਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬੂਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬੂਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬੂਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ। ਬਿਜੀ दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिन हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, वाह, और आज एज यूजुअल 2 करेक्शंस हैं। जी ये कहना कि हमने ये इकदाम उठाया है, आपने कई दफा सुना होगा। जी हाँ। इसका क्या मतलब? कि कोई स्टेप लेना, कोई इनिशिएटिव लेना। कोई इनिशिएटिव लिया, कोई काम शुरू किया, ये गलत है। ये ना कहा, हमेशा कहें कि मैंने ये कदम उठाया है। एक स्टेप लिया। हाँ, ये इकदाम जो है ना, ये कदम की जमा नहीं है, सर यही नहीं होता। ये है पेश कदमी। और इसकी जमा है इकदामात। वो अकदाम है, वो जबर से है, कदम की जमा अकदाम। कितना जिला कदम। नहीं, पिछली दफा मुंतजर और मुंतजर, हाँ ये 2 चीजें हमने क्लियर की थी। बेस्ट है कि मैंने ये कदम उठाया, हाँ। ये इकदाम किया है, यानी ये पेश कदमी की है। ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, हमारे लोग पेश कदमी कर रहे हैं, हाँ जी, पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। ये किसका जिक्र हो रहा है? पहाड़ी बकरियां दा सर। क्या वजह रंगीला के साथ हमेशा हैवानात, चरिंद परिंद, बकरे और सब्जा? सर एक तो रंगीला साहब की शक्ल ऐसी है, ठीक है। क्या मतलब शक्ल? सर देखिए कितनी क्यूट से छोटे से ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਟ ਸਾ ਦੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੀ ਫੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰੀਆਂ। दूसरा जी, खवातीनो हजरात। खवातीन खातून ही होती हैं। खवातीन तो कह देना, हजरत रिस्पेक्टेड नोबल को वो नहीं कहते। हजरत से नहीं है, फिर हाजिर से है, हैं हाजरीन। कि जो हाजरीन है ना, यानी खवातीनो हाजरीन, वो ये कहना चाह रहे हैं। सब बनता ही नहीं है। देखिए अगर लेडीज हैं तो साथ जेंटलमैन होंगे ना। आजमा खाम खा कर दिया है ये तो सोच क्या कर। खातीन हाजिर नहीं है? आप सिर्फ कहें हजरात। हजरात का मतलब भला क्या है? हाजरीन, हाजरीन महफिल। हाँ, तो इट इज जेंडरलेस, इट कॉल्स फॉर एवरीबॉडी। तो फिर खवातीन को तो ऐड ही नहीं करना चाहिए इसमें। गलत है ना। हाँ। अगर खवातीन कहना है तो फिर बंदे मर- क्या करेंगे बेचारे? फिर ऐसे में और मर्द- हजरात का मतलब मेन नहीं है, फिर मर्द हजरात कहते हो। मर्द हजरात। देखे ना, मर्द हजरात, हाँ। ये बड़ी अहम बात है कि अगर ये हम मानी होते तो फिर मर्द हजरात क्यों कहते लोग? हजरात का मतलब है हाजरीन महफिल, ऑडियंस जो है ना, दैट इज हजरात। तो सारे फिर खवातीनों हजरात क्यों लगाया जाता है? लेडीज एंड जेंटलमैन का तर्जुमा करने की बीमारी किसी को लायक होगी, जिसने भी किया है वो यकीनन इस चीज से नाशना है कि हजरात का मतलब क्या है। वो हजरत से ही लगता वो इसको है। हजरत से ही ले रहा है, वो इसको जेंटलमैन समझ रहा है। ओह और लगे हाथों एक गलतफहमी रफा ना कर दें। जी सर। ये बुरूज अबराज वाला मामला जी हाँ। आजकल इंटरेस्टिंग बहस चल रही है हमारे यहाँ। अब देखिए, हमने जिस दिन गुफ्तगू की थी ना, तो वो मुख्तलिफ बुर्ज जो
एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्कस हो रहे थे, याद है ना आपको? जी जी, इल्म नजूम के हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से बात हो रही थी और हमने बरूज की बात की। जी, इल्म नजूम में जो बरूज है ये वो सतून है, फिगर्स हैं जिन्होंने आसमान उठा रखा है, आसमान का पूरा जाला जो है उसको एक स्केलेटन को संभाला दिया हुआ है। और कुरान पाक में जो तज़किरा है वो ये कि इन्होंने आसमान को उठा रखा है, ये वो सतून है। सूरह बरूज मौजूद है कि नहीं? मतलब है कि जी, जी। ये कहना कि बुर्ज की जमा बरूज नहीं है, बुर्ज की जमा बरूज ही है। वो टावर वाले मीनिंग ये में। जो दूसरा है ना, हाँ जी, वो टावर है, उसको इबराज कहते हैं कि वो एक डिफरेंट, वो वर्ड ही डिफरेंट है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ये भी आता है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या कोई फर्क है कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी है जो प्रेडिक्शंस करते हैं, प्रेडिक्शंस और इन्हीं उलूम के बारे में। ये जो बरूज है ना, ये बरूज हम जो डिस्कस करते हैं जिनके नाम है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी डिस्कस होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी डिस्कस होते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो प्योरली इन्हीं के ऊपर बेस करती है, ऐसा ही है ना? जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं। अब ये जो बरूज है ना, ये एस्ट्रोलॉजी में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो ये इस घर से दूसरे घर में दाखिल हो गया, उनका मुश्तरी और जोल, मुश्तरी जोल में जिसको बिट्टू भाई कहता है ये मुश्तरी एडा वारा गर्द क्यों हर एक घर बढ़ जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के साथ चोली दामन का साथ है एस्ट्रोनॉमी का, फल्कियात, क्योंकि हेवनली बॉडीज है ये सारी। लेकिन इसका ताल्लुक बुर्ज और इबराज से नहीं है। इबराज जो ट्विन टावर्स है, हाँ। जो ट्विन टावर्स थे वो बरूज नहीं थे, वो इबराज थे। लेकिन जो अकरब है, पाइसेस है, जो मेंढा है, जो सुंबला है, ये बरूज है। बुर्ज के लातादाद माने हैं अरबी में। अरबी एक बड़ी रिच लैंग्वेज है और इसे कंफ्यूज ना करें। जो बरूज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फल्कियात से मुतालिक है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से मुतालिक। जो दुनियावी टावर्स खड़े हैं, आप देखें बुर्ज खलीफा है, अगर उस जैसा एक और खड़ा कर दिया जाए बुर्ज खलीफा तो अबराज खलीफा होगा, वो बरूज खलीफा नहीं होगा। लेकिन अकरब और सुंबला जब भी डिस्कस होंगे वो बरूज के मानों में होंगे। अच्छा, हराम किसे गल दी समझ लगी होवे, बुर्ज ते बराज ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਹਿਮਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। अच्छा पुन्नू जी भाई, पिछले हफ्ते हमने एक लफ्ज किया था जो दिमागी चोट, उसको क्या कहते हैं? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ मैंने ਜੇ पता ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਵੀ ਦੇ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने कुंद ज़हन है। सर वो आपके सामने बैठे इस वक्त नहीं सुन रहे, उसको कह रहे बुर्ज बराज क्या हो रहा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰੂਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਾਹ। अच्छा जी, उसका मतलब था आसेब, दिमाग पर गहरी चोट। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਆਸੇਬ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਸੇਬ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇਛਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸੇਬ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੇਬ ਲੱਗਦੇ। अच्छा जी, कुछ अल्फाज जो गलत मानों के साथ मशहूर हैं और ये पहले हो चुके हैं। रकीब, दुश्मन। ਲਵ ਰਾਈਵਲ। रकीब का असल मतलब है हिफाजत करने वाला, चलो जी, ये तो मुहाफिज। राइवल दुश्मन होते कह रहे सी। ये तो गलतुल-आम है ना। ये एक और बहस है कि गलतुल-आम हुआ कैसे होगा, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं। असल चीज है कि इसका मतलब है मुहाफिज। अब हुआ ये होगा कि जिस दौर में ये गलतफहमी क्रिएट हुई, या इसको जिस वक्त मिस इंटरप्रेट किया गया, गलतुल-आम बना, जी हाँ। उस दौर में खवातीन अकेली घर से नहीं निकला करती थी। शपरोन होते थे कोई यूरोप ना में कोई भी। शपरोन की शक्ल में या गार्ड की शक्ल में साथ होता था। तो अब बंदे ने, जिसने कोई बातचीत करनी चाहिए होगी, अपना कोई अता पता एक्सचेंज करना होगा, उसने देखा कि ये तो 3-4 बंदे साथ होते हैं, या इसके कोई कजन, को भाई, को ये वो, इनकी मौजूदगी में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी ने पूछा होगा कि ये कौन है साथ, तो बताने वाले ने बताया होगा कि यार ये रकीब है, ये उसके रकीब है। और हकारत से कहा होगा। और पुन्नू सुन रहा होगा पास। तो पुन्नू ने ये अखज़ कर लिया होगा कि ये जो आशिक के रंग में भंग डालते हैं ना, इनको रकीब कहते हैं। वाह वाह। हालांकि रकीब अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, अब्दुर रकीब, मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। लेकिन ये इतना मुस्तामिल हुआ
कि शोरा कराम ने, लिखारियों ने, अदीबों ने, जो कि नेसेसरीली आशिक मिजाज भी होते हैं, जी हाँ, उन्होंने बहुत तस्करा किया। और शहजाद ने बड़ा उम्दा रकीब को बांध रखा है। कहते हैं कि मंजिल जब एक है तो जुदा क्यों हो रास्ते, मंजिल जब एक है तो जुदा क्यों हो रास्ते, मैं साथ अपने लेके चलूंगा रकीब को। बहुत अच्छे जी। ख़वातीनो हज़रात, रंगे आस्तिया भी जारी है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है दफ्तर। ऑफिस देखा ना, हर कोई ऑफिस नहीं होता। वेख लेना का मतलब खरगोश निकल आना जी। तुम्हें पता जब वो पटूसी मारता है दफ्तर जा रहा होता है दफ्तर, और उस वक्त उधर पुन्नू मौजूद था। पुन्नू साला है फरंगे आसपिया का। बाय द वे, खरगोश टपूसी नहीं मारता, वो जंप मारता है, छलांग मारता है। टपूसी हमेशा बंदर मारता है। टपूसी की हुंदी भाजी उल्टी कलाबाजी। दफ्तर तो सीधा टपूसी ते गए हो। एक गल तो पूरी दस दियो पहले। यानी वो खरगोश की तरफ चला गया ना। दफ्तर बुनियादी तौर पर हम समझते हैं ऑफिस को कहते हैं, जहाँ पर काम काज होता है। वो गलत है। अच्छा, नाल दा कमरा तुहाडा दफ्तर नहीं? नहीं, वो फिर की अंडा? वो दफ्तर खाना है। अच्छा, दफ्तर खाना होर हुंदा ते दफ्तर होर हुंदा। हाँ जी, अकूबत खाना कभी नहीं सुना? सर ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੂਬਤ ਖਾਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। अकूबत ਅੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੱਸੀਆਂ, ਛੈਣੀ, ਥੌੜੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਛੈਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਢਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਪਈ ਹੋਣੇ ਮੋਚਨੇ ਨੋ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਓਏ? ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੋ ਪੁੱਟਦਾ? ਓਏ ਦੂਜਾ ਜੋਈ। ओ ये बूटा नहीं है। ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਬੂਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? अच्छा, बाय द वे, मोचने के साथ नाखून नहीं उखाड़े जाते, जमूर होता है, जमूर। आए हे, तो सर फिर दफ्तर होता क्या है? रजिस्टर, चलो हाँ जी। एक बड़ा सा बही खाता नहीं होता, जिसको भाई हिसाब किताब होता है, नोटेशंस होती हैं, डे बुक होती है, उसको दफ्तर कहते ਅਸੀਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। हैं। वो दफ्तर खाना है, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਨਾ ਵਾ। जिसमें दफातर पड़े हुए हैं, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। वो ਸਹੀ। दफ्तर है। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। यही वजह हुई इस गलत फहमी की। खाना उड़ ਇੱਥੇ गया। ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? अब किसी खातून ने पूछा कि आपके मियाँ किधर हैं, तो वो अपने कमरे में बैठे, उनका दफ्तर खोले बैठे और सुबह से यही काम करते चले जा रहे। अब वो तो अपने रजिस्टर खोल के बैठा हुआ था, पुन्नू करीब ही खड़ा था। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਓ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। नहीं नहीं नहीं, पुन्नू तो सुन रहा था ना, उसने यहाँ से बात लेकर आगे पहुंचानी। अफवाह साज फैक्ट्री है पुन्नू। एक आदमी होता है दफ्तरी। दफ्तरी कोई जंतरी टाइप होनी छोटी। दफ्तरी आम तौर पे समझा जाता है कि जो स्पॉट बॉय होता है ना, ये तो दफ्तरी है, यहाँ पे पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, होता मुलाजिम ही है दफ्तर का। जो दफातर का हिसाब किताब रखे, यानी कहाँ कौन सा रजिस्टर पड़ा है, उनकी एक तरह की कैटलॉगिंग करता है, फाइल वर्क वो करता है, फाइल्स को संभालता है। ही इज द दफ्तरी। ओह, So he is always called when a file is required, when a special register is required, कि भी दफ्तरी को बुलाओ, वो फलां रजिस्टर लेकर आए। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। केड़ी ज्यादा? ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਲਾ? कुछ भी नहीं, क्या खा रहा था मैं? एक रकाबी गोश्त की, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ? वो मिक थी, मिक। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਦੁਬਈ ਦੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ? नहीं नहीं पुन्नू, हम सब ने खाया था। पता है कल आफ्ताब साहब के घर में दावत थी, तुम तो नहीं आए ना। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਲ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन कल खाना था अकरम उदास के एजाज में, और मेरे एक दोस्त हैं मियाँ कामरान साहब, वो जापान से आए हुए हैं। ओह पुन्नू, आपको क्या बताएं, आपने क्या मिस किया है कल? ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਸਟਰਡ ਤੇ ਮਾਰਨਾ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। किस एडा मजेदार सी, किसी ने फोटो नहीं बनाई कि पुन्नू नु पा दिए। वाकई फोटो बनाने का टाइम ही नहीं था, हालांकि सारे कह रहे थे कि पुन्नू नु भेजो यार, ताकि उन्हें एहसास होए कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ याद कर रहे हैं। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਪਾਨੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੌੜਿਆ? नहीं, वो भी इधर ही है, वो इसलिए भी इधर ही हैं। ਉਹਨੇ ਖਰਾਕਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਖ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। 8 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਖਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ।
जापान वाला अपनी आइटमां लेके आया सी कि इसके साथ एनर्जी आती है, इसके साथ आप ओवर एज नहीं लगेंगे। इसको भुल गया, कहना मैं आ काम शुरू करना, कहना मैं उथे निहारी शुरू करन लगा, नाल मिक शुरू करन लगा। अच्छा जी, आज के शेर, ओ वाह वाह, आज 2 शेर हैं। फॉर अ चेंज। नहीं, उसकी वजह है कि बाज़ औक़ात एक शेर मकसद पूरा नहीं करता, तो स्टैंजा हो गया फिर। वो एक तरह का कथा बन जाता है। हाँ। जिस तरह वो है ना कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, वो 4 मिसरे अगर ना हो तो मजा नहीं आता। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਕ जाना है। नहीं, आपने क्या साइकिल वापस करनी है? क्यों इतना टाइम बार्ड आप मामला कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो काले पे जी सारे। जफर इकबाल साहब कहते ये जो मारूजी सूरत हाल है, पूरी दुनिया में जो कहानी इस वक्त चल रही, जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में चंद माह बाद होने वाला है, फिर यूरोप में जो पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग गोइंग अराउंड शकील साहब। तो ये जो इवेंटफुल ईयर्स है ना, अपहीवल्स, किसकी किताब है ईयर्स ऑफ अपहीवल्स? हेनरी किसिंजर, वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज। वो कहते हैं जी कि जमीन करवट बदलने के लिए तैयार हो जैसे, जमीन करवट बदलने के लिए तैयार हो जैसे, घड़ी रुकने को है, जंगल में आहू डरने वाला है। और बहुत नींदें निछावर कर चुके, अब चैन से सोना। बहुत नींदें निछावर कर चुके, अब चैन से सोना। कहानी खत्म पर आई है, मजनू मरने वाला है। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि दौरान परवाज दौड़ लगाकर मुसाफिरों में खौफो हिरास फैलाने वाला बरहना शख्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा जी, ये वाकया है ऑस्ट्रेलिया का। जहाज पर्थ से मेलबर्न जा रहा था और ये नीम पागल, बल्कि पागल शख्स बरहना होके भाग रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। लोगों ने अवॉइड करने की कोशिश की कि यार खुद ही संभाल ले, लेकिन फिर वो आके लगा किसी अमले के किसी बंदे में, उसको फेंका है। शुक्र है जख्मी कोई नहीं हुआ, लेकिन उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो सर जहाज में कैसे पुलिस के हवाले? फ्लाइट वापस लेकर गए वो। कहा अब इसके लिए हम इंतजार करें मेलबर्न जाने का। नहीं तो ये साइकोटिक अटैक उसको चलते जहाज में हुआ या वो नीचे से ही कोई मेंटली चैलेंज था? जाहिर है कि नीचे से अगर चैलेंज होता, सिक्योरिटी रोकती उसे। हाँ। आते ही बैठा है, उसने कपड़े उतारे बड़े इत्मीनान से और अलफ होके इधर उधर भाग फिर रहा था। बेचारे पैसेंजर्स। डमी म्यूजियम से हमने बुला रखा है ये 3rd क्लास शख्स। ऐसा है वही ये मेरे तो ना बात है। नहीं, मैं इसी को कह रहा हूँ। शकील साहब, इस तरह का वाकया कभी हुआ पहले? आई डोंट थिंक सो। लेकिन बंदा कितना डिस्टर्ब होता है, आप किसी काम से जा रहे हैं, आप किसी हॉलीडे से जा रहे हैं और आपके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स होने लगे। लेकिन ये देखें, ये बेचारा कितना को मजबूर होगा जिस पे साइकोटिक अटैक हुआ है। ये को मतलब है कोई शौक से थोड़ी इसने किया होगा, बीमार होगा ना। मे बी। कौन बीमार का होना? मैं बीमार हाँ? मैं चंगा भला सही हाँ। मैं ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਏ ਤਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਏ। 4-5 तीतर तुम जैसा बंदा खा ही नहीं सकता। ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ चिड़े होंगे। ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਲਖੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣ ਚਿੰਗਣਾ। यार मुख्तसर बात करो। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ओहो। अच्छा, यहाँ कपड़े पहनकर क्यों नहीं आए? ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ यार ਆ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। थोड़े कपड़े हैं, देखो ना, ये असल लिबास तो ये होता है। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਲਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। और भी हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए वो तमाम मुसाफिर जो एनी शाहिद है। आए बेचारे। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਏ, ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਕਲ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, हाँ जी, ਜਹਾਜ਼ ਚ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। वो क्यों? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। यार इतना हैंडसम आदमी है, क्या हुआ है? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? तो तौबा ऐदा जिवें पेड़ा जवान होया हुंदा। कभी कभी मुझे शक पड़ता है कि ये है ही कोई घटिया शख्स, वाकई
फेम लेने के लिए, वायरल होने के लिए इसने ये हरकत की है। ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ भाई आप करते क्या हैं? ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਉਸ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਾਥ ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀ ਕਸਮੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਢਾਵਾ ਮਾਰ ਰੋਈ ਹੈ क्यों रोई भाई? ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, क्यों? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। नहीं, तरस तो आता है, यकीन करें मुझे बहुत तरस आता है। ये जो ज़हनी तौर पे मफलूज लोग होते हैं, रिटार्ड्स होते हैं, जो चैलेंज्ड पीपल, मेरा बहुत दिल इनको देख के ना पसीज जाता है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। तो आपने जो हरकत की है वो नॉर्मल इंसान करता है? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ ਆ। अच्छा, ये बात 14 तारीख को मैजिस्ट्रेट के सामने कहना। ਕੋਈ 14 ਤਰੀਕ ਪਾ ਗਈ ਮੇਰੀ, हाँ जी ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? भाई, डेट ही तुम्हें 14 दी गई है, मैं क्या करूं? ਨਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? इंडिसेंट एक्सपोजर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਓਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਗੰਜਾ ਲੋਚ ਕੱਲ ਹੀ ਤਲਿਆ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ, ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਦੇ। अच्छा, कभी आपको किसी ने बताया कि इस गेटअप में आप बिल्कुल ओपी नैयर की तरह लगते हैं? ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। शुक्र है ओपी नैयर साहब इंतकाल कर गए हैं, वरना वो इस दुख में मर जाते। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਜੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਆਪਟੋ ਕਲਿਪਟੋ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਐਪਟੋਪ ਕਲਿਪਟੋਲ? हाँ जी, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? वो जो डाइव करने का, जो ऊपर से आबशार से छलांग लगाता है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਛਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰਵਾਨ फिरौन वाली नहर केड़ी है भाई? ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਝੀਲ ਤੇ। मैंने बड़ी नहरें, खौफनाक तरीन नहरें भी देखी हुई। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈੱਡ ਸੀ की बात कर जी, रेड सी को ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? फरुखाबाद वाली। फैसलाबाद जाए ना तो फरुखाबाद से ये कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल गुजर रही है, वहाँ उसके रैपिड्स हैं ब्रिज के नीचे। ਐਡੀ ਚੌੜਾਈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੈ। चौड़ाई अगर देखनी है तो संबड़ियाल नहर की देखो। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਤੋਂ ਗਈ ਜੇ। ये चौड़ाई से नहर खौफनाक नहीं होती बेवकूफ, गहराई और तुगयानी से। बहाव और गहराई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हैं? अच्छा, सारी नहरों में नहाए हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। पानी के अंदर। ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ। लेकिन एक नहर ऐसी है जिसमें कभी कोई नहाना पसंद नहीं करेगा। ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं, ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਲੀ नारा कैनाल, ਆਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਬਈ full of crocodiles। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? सिंध, ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀ? दरिया सिंध से। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सर, फिरौन दी नहर के अलावा कौन से इंटरनेशनल वाटर्स में आपने छाल मारी है? ऑलमोस्ट सब में। 3 बड़े ओशंस जो है ना, पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक। इंडियन तो बहुत तूफानी है। इंडियन ओशन भाई तूफानी, अटलांटिक से ज्यादा तूफानी होगा। नहीं, आप जाते किसी काम से पानी देख के छलांग मार देते? मुझे पसंद है खुला पानी, दरिया में नहाना, समंदर में नहाना। ਸਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। रंगीले ने बहुत सी नहरों में नहा रखा है, अच्छा नहाता है। ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ 300 ਲੱਭ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ 500 ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, उसने पानी ने उसको देकर जंप करवाते थे। ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਰਾਵੀਅਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਵੀਅਨ इस जबान को ये रावियन कहता है। ਆਹੋ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੇ ਵੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇ ਅੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਰਾਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੌੜਾਤਾ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਇਸ ਬੇਬੇ ਹਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। आपके घर वाले किधर हैं भाई? ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ। कि उसने सोचा कोई जिन है। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाम परस्ती है कि जिन को देखे ना तो कपड़े उतार दे। जी, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।